Do I look like I'm wearing a helmet with this? We'll just show you. So what a superficial person I'm turning out to be. Yeah, and because you're the opposite of that. In real Yeah, life. but it's just that I don't know. It's like recently I've gotten so much flack for it. Not flack per se, but I'm like, okay, fine. You know, I am an actress too. Mm-hmm. And if I can work a little on Yeah. it, there's nothing wrong I with have it. a slight foray happening in television ke andar, and I'm Acha. doing like this hosting thing. We're sitting there and they're doing makeup and they start covering like these bald spot looking things that I have Yeah. with like this powder. Yeah. And all of a sudden I just went like, no, I don't do this. Huh. But I don't see any. But you've I styled your don't hair see in a any, but they fashion. saw it. And by the time I was done, I looked like this guy that I'm not. You know, like कि मैं गोरा भी थोड़ा सा मुझे गोरा भी कर दिया. थोड़ा हाँ, सा. but I guess you see, like when मैं actress होने की बात कर रही हूँ, like when you're in show business and you're playing all these different characters, and you're an actor, so you're hardly ever yourself while acting, right? There is a part of you in there, but you're playing a character. So, and then obviously I want to get more work because I need to make money. I already have a half-finished film. I'm in the middle of making my second project right now. So I have to pump in a lot of money in shit I do. I never prepare questions because I'm like usually conversational, but I'm such a big fan that I want like, she's coming, we gotta prepare questions. Yeah, that's so sweet. But somehow, I'll tell you very honestly, I never believe it when somebody says it. I know, I've seen that in your other interviews. I think You're they're very just humble. fucking with me. Saying it to like, I don't know. I don't believe it because you see, maybe it's all rooted in how I've grown up, who I am. Yeah. The fact that, you know, when you're like this, I was a fat girl most of my life. I have dealt with a lot of rejection and a lot of not like, and then I was this person that I am. So I never really fit in anywhere. So when now people say that they're a fan, I'm like, they're just fucking with me, you know. It's Yeah, like and it's also a good way to not let your head get gassed up with the, I'm like, oh, I am the shit. I hope sometimes I wish for that it was a little intentional to keep my head in place. Then I could enjoy it a little too and not like get a big head. But in my case, I think I'm never able to enjoy it. And in fact, it just ends up adding more pressure on me to do better. Compliments to that. To write better, to act better, and I have too much pressure as it is in my life. You've taken up काफी ज़्यादा. So maybe I should do a little bit of an introduction. So you're an actor. And I heard in one of your interviews कि वो verb इस्तेमाल करना चाहिए. You're not an actor, you act. I read it somewhere too. You're not a poet, आप शायरी करती हैं. आप अदाकारा भी हैं और आप हिदायतकारी भी आप कर रही हैं. And you've done television. और अब फिल्म की तरफ आपका एक आधा प्रोजेक्ट फंसा हुआ भी है जिसमें करोड़ों डूबे हुए मैंने सुना है अभी तक. तो मेरे अपने हैं वो, लेकिन अच्छी बात ये है, it's on my own money. It's 2.25 crore रुपए. But it's money invested by myself. I didn't take anyone's money to go in there at all. So so that's less pressure? दूसरों के लिए ज़्यादा pressure महसूस होता होगा? Yeah, that bit too. And I have a certain way जिसमें मैं देखती हूँ चीज़ों को. मैं चीज़ों को एक अच्छा बुरा तरीका नहीं है, मेरा अपना एक तरीका है. इसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट यहाँ से लाते हैं कि जो राइटिंग एंड डायरेक्टिंग है ये आज की कहानी नहीं है. मैंने बुनियादी तौर पे थिएटर में लिखने और डायरेक्ट करने से ही स्टार्ट किया था. मैंने एक्टिंग नहीं की थी. मैंने एक्टिंग कभी स्कूल में भी नहीं की थी. आई वॉज नेवर मेंट टू बी एन एक्टर. आई नेवर थॉट आई कुड बी एन एक्टर. मैं वो ज़रूर होती थी बच्ची जिसने हर शादी पे जिसका एक सोलो डांस ज़रूर होता था. एंड या कोई दोस्त रिश्तेदार अम्मी के आते थे तो वो कहते थे कि चले, अब अम्मी मुझे कहती थी चल गाना सुना दे, चल ये सुना दे. तो फिर वो पहले मैं उनसे कुछ और चीज़ें ले लेती थी. फिर थोड़ी मैं बड़ी होती थी तो मैं एक फ़ोन का कार्ड उनसे डीलिंग करती थी कि मुझे एक फ़ोन का कार्ड दिलाओ फिर सुनाऊंगी टाइप. और वो पता नहीं क्या वो उनको पसंद है मेरी आवाज़ गाने में भी, और जो कुछ शेर मुझे आते थे. तो 25 साल की उम्र में मैंने स्टेज पे राइटिंग और हिदायतकारी से अपना ये वाला एस्पेक्ट जो है ज़िंदगी का, शो बिजनेस ये शुरू किया. This is in Islamabad. This is in Islamabad. तो मैंने 3 साल. Sorry, I'm interrupting. शराबील टाइम and like. शराबील की इस्लामाबाद में पहली प्रोड्यूसर मैं थी.
ये उससे भी पहले की बात, वो उससे भी पहले की बात है। उस वक्त मेरी उम्र 21 साल थी। फिर वो कुछ एक्सपीरियंस मेरा कोई बहुत ज़्यादा मुनासिब नहीं रहा, तो मैंने कहा ये नहीं करना मुझे। फिर मैं उसमें क्या आप कुछ तनकीद करेंगी कि क्यों मुनासिब ना था वो? बस नहीं, मुझे वो नहीं, वो फिर ऐसे हो जाएगा ना, आप किसी की बैठ के बुराइयां कर रहे हैं, बदखोइयां कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ सिस्टेमिक बात किसी एक इंसान पे ना छोड़ें बेशक, क्योंकि वाइब्रेंट सीन था ना। आई थिंक मेरे से मिलती जुलती नहीं थी ऑफ डूइंग थिंग्स लाइक dealing with talent or dealing with the team and doing what they're doing के वापस जो आप कर पाते हैं, तो कुछ इस किस्म के still staying vague. Good enough, I got everything from it. So फिर मैं मास्टर्स करने चली गई थी इंग्लैंड, क्योंकि मैं पढ़ाती भी थी यूनिवर्सिटीज़ में उस टाइम पे, बैचलर्स करके जब मैं आई थी, तो which was in business. और फिर मैं मास्टर्स करने चली गई, तो वहाँ पर ही मैंने पहली दफ़ा अपना पहला स्टेज का ड्रामा लिखा था, और वापस आकर मैंने उसको पढ़ाते हुए अपनी ही एक यूनिवर्सिटी की क्लास के साथ, फिर स्टूडेंट्स के साथ किया था। तो वहाँ से मेरा सफ़र एक्चुअली शुरू उधर से हुआ था। वो राइटिंग एंड डायरेक्टिंग वहाँ से स्टार्ट हो गई थी, और एक्टिंग क्योंकि मैं वो इस्लामाबाद में पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स है, वहाँ किया मैंने वो ड्रामा। उनको मेरा कुछ थोड़ा एम्बिशन और मेरी सोच ज़रा समझ आई, तो वो मुझे अपने भी ना जो इन हाउस प्रोजेक्ट होते थे, कश्मीर डे का प्ले हो गया, 14 अगस्त का प्ले हो गया, कोई और प्ले हो गया, वो करने के लिए, डायरेक्ट करने के लिए मुझे बुला लेते थे। वो थोड़े से पैसे होते थे, बट वो वहाँ मेरी प्रैक्टिस होती रहती थी। तो वहीं पर फिर बहुत सालों बाद एक नेशनल ड्रामा फेस्टिवल अनाउंस हुआ, जो पहले हुआ करता था इस्लामाबाद में बहुत रेगुलरली। नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स ही कराती थी। 30 ड्रामे पूरे मुल्क से आ रहे हैं, 40 दिन का फेस्टिवल। तो उसमें मैंने वॉलंटियर किया टू बिकम द कोऑर्डिनेटर ऑफ द फेस्टिवल। That's an AD type task. हाँ, कि मैं सारे लोगों से कोऑर्डिनेट करूँगी। तो उसमें सानिया सईद भी आई थी अपना प्ले लेके, शीमा किरमानी आई थी, मदिया गौहर आई थी, फरियाल गौहर का प्ले था, यहाँ से सुहेल मलिक साहब थे, थेस्पियन थिएटर्स वाले फैसल भी थे, लॉट्स ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, जमाल शाह साहब थे। तो उनसे तो मुझे कोऑर्डिनेट करने का भी मौका मिल रहा था, और मुझे पर्सनली लगता था कि वहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, कोऑर्डिनेशन जो है ना वो नहीं आती टैलेंट से करनी लोगों को। तो ओवर देयर वन ऑफ द प्लेज was supposed to be Shahid Lone and Nadia Jamil, 2-character play called Hassan Kuzagar. Oh, and I've heard Zia Mohiuddin's recital of that. हाँ, yeah. तो वो it's a quartet, 4 नज़्में हैं वो, नून मीम राशिद साहब की, उस पे बेस्ड एक प्ले था। बहुत थिएट्रिकल बातें, और एक पेंटर जो बहुत मशहूर है अब, एक राइटर जो कि अब गुमनामी की ज़िंदगी जी रहा है, इनका कहीं कभी इश्क हुआ करता था, इनकी एक मुलाकात है 20 साल बाद टाइप। तो नादिया जमील उस वक्त आई थिंक कुछ तबीयत की ख़राबी की वजह से उन्होंने कहा नहीं कर सकूँगी मैं। अब कार्ड छप चुके थे और कार्ड बट चुके थे। आपको पता है ना पाकिस्तान में कितना बड़ा मसला होता है जब कार्ड छप जाए और कार्ड बट जाए, फिर देयर इज नो कमिंग बैक फ्रॉम इट। तो देन व्हाइल वी वर ट्राइंग टू सॉर्ट दैट प्रॉब्लम आउट, हसन अब्बास रज़ा साहब वो जो उस वक्त डायरेक्टर थे सारे परफॉर्मिंग आर्ट्स डिपार्टमेंट में, उनका आस्टर व्हाई डोंट यू डू इट, कहें तो फिर मैं मतलब कुछ ऐसे ले दे हुई थोड़ी इस बात पे, बट देन शायद लोन वाज आल्सो लाइक यू डू इट। तो मैं कोऑर्डिनेट भी करी थी उस फेस्टिवल को, उसके बीच में मैं 10 दिन लाहौर गई डायरेक्टर के घर रहने, मैंने वहाँ रोल प्रिपेयर किया और आकर वो कर दिया। दैट वाज मी स्टार्टिंग टू एक्ट। और वो आज़ाद नज़म है, वो एक तरह का एक वो तो आप समझ लें 90 मिनट की आज़ाद नज़म टाइप ही डिलीवरी है उसकी। वो जो 2 कैरेक्टर्स की कॉन्वर्सेशन है वो एक पोएटिक प्रोज के ज़ुमरे में आता है। 80 मिनट स्टेज पे कॉन्स्टेंटली रहना, तो वो हो गया और वो मुनासिब हो गया, अच्छा हो गया। तो बस फिर वहाँ से अदाकारी भी ऐड हो गई बीच। हाँ, लेकिन बुनियादी तौर पे जो मैंने अपनी मर्जी से चुना था काम शुरू करना, वो राइटिंग एंड डायरेक्शन ही था। अच्छा, और ये आपकी ड्रीम एक तरह की थी, और इन अ सेंस ये अदाकारी पार्ट ऑफ इट इज एक साइड। हाँ, एंड अभी जब मैं सोचती हूँ तो अभी जैसे मेरी पहली फिल्म में भी मैं राइटर डायरेक्टर और एक्ट्रेस हूँ सेंटिमेंटल में, और अभी जो तारीफ़ का शुक्रिया है जो कि है ही 1 कैरेक्टर फिल्म भी नहीं है वो, इसमें मैं कुछ 5वां फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग इन्वेंट करने की कोशिश करी, जिसमें स्टेज, सिनेमा, व्लॉग, डॉक्यूमेंट्री, इन 4 फॉर्म्स ऑफ शूटिंग
एंड रिकॉर्डिंग और टेलिंग समथिंग को मिलाकर एक और फॉर्म है तारीफ का शुक्रिया. It's a 90-minute monologue, which is shot with all techniques. Interesting. And it is in a small performance art theater. तो एक स्टेज है, हॉल खाली है, और वहीं पे किसी का बेडरूम सेट लगा हुआ है, किसी का क्या मैं ही हूँ, और वो ऑटोबायोग्राफिकल भी है इन नेचर. तारीफ का शुक्रिया. wow. तो ये जब मेरे एक्टिंग ऐड हो गई बीच में, तो मुझे बुनियादी तौर पे कहानी सुनाने का शौक है. तो वो एक्टिंग मेरे पास एक और स्किल ऐड हो गया, क्योंकि जो इस तरह हम नैरेटिव के थ्रू कहानी सुनाते हैं वीडियो में, उसमें फिर राइटर एक स्क्रैच से थॉट लिखता है, डायरेक्टर शॉट्स कॉल करता है कि कौन क्या क्या कर रहा होगा, कब कैसे क्या होगा, और एक्टर के पास बिल्कुल वो फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पहुंचाने तक की. तो अगर आपको ये तीनों काम करने आ जाएं तो फिर आपका और बढ़ जाता है ना. और एक सेटिस्फैक्शन भी तो होती होगी बीइंग द ऑथर एंड हैविंग द विजन फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड. मस्ट बी लाइक, एक तो होता है कि आप जाके किसी और के अल्फाज अदा कर दें, और वो इस जुमले के इस जगह पे आपने आंसू आना है और फिर गिरना है, वो वगैरह करना, वो एक स्किल आपकी होगी. बट नॉट ओनिंग द वर्ड्स, यू मस्ट फील हेल्पलेस एट टाइम्स. समवन लाइक यू who's an author. So I am very blessed like that when the words are not making sense at all and I talk to the director, they always let me rewrite. Nice. Because I say and even if I think कि यहाँ कुछ मसला हो जाएगा, तो मैं बस फ्रेम में खड़े होकर बोल देती हूँ जो मुझे मुनासिब लग रहा होता है, जिस्ट वहीं रहे, कायम रहे. अच्छा, उसकी एक और बहुत बड़ी वजह ये है, इट्स नॉट बिकॉज आई थिंक कि मैं बहुत बड़ी राइटर हूँ. मेरा जो सबसे बड़ा मसला है इस वक्त बहुत सारे स्क्रिप्ट से, वो ये है कि हर किरदार अगर अलग ज़बान नहीं बोल रहा, उसकी कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस नहीं है दूसरे किरदार से, तो फिर वो अच्छी राइटिंग नहीं है. दैट्स नॉट गुड स्क्रीन राइटिंग. अ गुड स्क्रीन राइटिंग is also about characterization and defining the language of every character. Something I really like about Chudels. Yeah. Like if you ask me that who's my favorite writer right now from Pakistan, Asim Abbasi. Yeah. He was, the minute I read his script. Yeah. I fell in love with the script, the whole thing, the vision, him. You might see a lot of influences of his work in Tareef Ka Shukriya too. Okay. Because he's definitely an artist of modern times who has greatly influenced me. And he's casted people so accurately at the same time, and then all the dissectional के मतलब के एक तबके से लेके दूसरे माली तौर पे फ़र्क तबकात को represent करना in a narrative. Yeah. But then also I wanted to go back a little bit. You like to change the form and mix it together and not be boxed into a stereotype yourself as well. And your own personality is of that sort. We can't really pin you down. We're trying to figure out who is she. There's that mystery problem. Yeah. I don't know if it's a problem. I guess in the future you have limitless possibilities of where your personality can go. But then एक तरफ से ये भी है कि लोगों को जज्ब करने में भी ये होगा कि यार आप शायर हैं, आप क्या हैं. हाँ, you know? तो यहाँ प्रॉब्लम है ना, वो यहाँ पे स्पेशली कास्टिंग में प्रॉब्लम हो जाती है. जो लोग बैठते हैं डिसाइड करने कि हमें आस्ट्रा से क्या कराना है, वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है. बिकॉज देयर लाइक क्या हमने क्या करना है इसका, व्हाट डू वी डू विद हर, हु इज शी, व्हाट डज शी वांट. अभी थी तो 83 किलो की थी, अब 47 किलो की होगी है, क्या सीन है इसका. उम्र ये है, अब दिख कुछ और रही है. जब उम्र कम थी तो कुछ और दिख तो ये कॉन्शियस एफर्ट है, ये जिस फितरी तौर पे इस तरह की शख्सियत है आपकी? मेरी फितरी तौर पे ऐसी शख्सियत है. मुसलसल एवोल्यूशन और तब्दीली, और मुझे जहाँ लगने लगता है कि मैं ज़रा ज़्यादा कंफर्टेबल हो रही हूँ, मैं वहाँ से निकल जाती हूँ फ़ौरन. मुझे अपने आप को मुसलसल एक डिस्कम्फर्ट में और एक पोजीशन ऑफ चैलेंज में रखना पसंद है. शायद यही वजह है कि मैं अभी तक इतना कुछ एक्सप्लोर भी कर पाई हूँ, और ना सिर्फ एक्सप्लोर कर पाई हूँ, उस बॉडी ऑफ वर्क को बाहर प्रेजेंट भी कर पाई हूँ. मैं बड़ा मजाक भी लगता है मुझे कभी कभी, लेकिन मैं 8-9 साल पहले जब कराची आई थी, तो जैसे मैं रहती थी और जहाँ रहती थी और जितने पैसों में रहती थी और जिस सम्मान के साथ रहती थी, मैं आज भी वैसी ही रहती हूँ. वहाँ पे कंसिस्टेंसी कायम है. वो कंसिस्टेंसी इसलिए कायम है क्योंकि फिर वो जो एक्स्ट्रा पैसे आते हैं ना, वो सारे मैं फिर कुछ अब नया एक्सप्लोर करने में लगा देती हूँ, तो वो इसलिए मैं अफोर्ड कर पाती हूँ. मैं किसी एक जगह पर उसी के तरीकों में ज़्यादा ढलती नहीं हूँ. बहुत ज़्यादा पैसे आ जाएं तो उनको भी अपने पास रख के अपने लाइफस्टाइल को वहाँ नहीं लाके खड़ा कर लेती कि जहाँ से मैं निकल ना पाऊँ. Does that make any sense? It does make sense because people just
एक्स्ट्रावेगेंट टेस्ट्स के साथ अपने आप को डेवलप करके नाउ यू गॉट दैट रियली एक्सपेंसिव कार दैट हैज़ पेट्रोल भी ज़्यादा खाती है, जिसकी मेंटेनेंस भी ज़्यादा करनी है, और फिर आप आगे अपने आर्ट को नहीं बढ़ा रहे, अब अपने लाइफस्टाइल को ही बस बढ़ाई जा रहे हैं। तो मेरे पास ये था कि मैंने जो कुछ भी कमाया और जमा किया 36 साल की उम्र तक, तो 36वीं बर्थडे पे मैं सेंटियोरमेंटल के सेट पे चली गई. That was the first day of shooting for Sentimental. I had promised to myself that the day I'm turning 36, I better be standing on a feature film set that I believe in. Where I've casted the people I think are good actors. Where there is a story which, like with Sentimental and Tareef Ka Shukriya are like this. They're like 180-degree opposite to each other. But Sentimental was my attempt or my contribution towards how I think पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम सिनेमा could progress. अच्छा, अगर पाकिस्तान का आप मेन स्ट्रीम जिसकी बात करते हैं, उसका भी एक न्यू एज लुक मौजूद है, उसकी भी एक न्यू एज वर्जन मौजूद है, उस पे काम किया जा सकता है. आप अच्छा ठीक है, आप कहने जी आपकी पब्लिक को बहुत कॉम्प्लेक्स कहानी नहीं समझ आती, आप कहानी कॉम्प्लेक्स मत करें, लेकिन कम से कम अपने थीम्स को और उसमें की गई बातों को प्रोग्रेसिव कर दें. उसकी लैंग्वेज बेहतर करते हैं, उसकी शॉट टेकिंग बेहतर करते हैं, उसकी जनरल स्टाइलिस्टिक्स एस्थेटिक्स को थोड़ा और ग्लोबल कर दें, थोड़ा न्यू एज कर दें. तो हाँ, तो वो इसी तरह. और उसके बाद कुछ ज़रा 4 पैसे जमा हुए. तारीफ का शुक्रिया. हाँ अभी तो पिछला मुकम्मल नहीं हुआ, तो उसके लेबर पेन्स अभी खत्म नहीं हुए, वो भी आप एक तरह से प्रेग्नेंट ही हैं उस थॉट के साथ. चल रहा है वो. तो वो जब तक निकलेगा नहीं, तो अगले को आगाज क्यों किया? ये तो इत्तेफाकन हो गया ये भी, क्योंकि मैं क्लब 432 गई क्या करने, एक स्टेज पे मोनोलॉग करने. क्लब 432 इज अ परफॉर्मेंस आर्ट थिएटर एट समसमा. दे इनवाइटेड मी, दे हैड जस्ट ओपनड अप शुरू में साल के, और मैंने वहाँ स्टेज पे मोनोलॉग करना था. तो देख सेट कि शो करना है, मैंने कहा मुझे नहीं करना. देयर लाइक ना करने के बारे में शो कर दो, कि शो नहीं करना. तो मैंने शो ना करने के बारे में एक मोनोलॉग कर लिया. हाँ, और मैंने कहा अच्छा मेरे कमरे का सेट लगा देंगे, तो मैं अपने कमरे की चीज़ें ले आती हूँ. ठीक है. तो मैं अपने कमरे की चीज़ें लेकर वहाँ पहुँच गई, और 23 तारीख को मेरा शो ना था, 22 तारीख को मेरा शो ना था, 23 को लॉकडाउन. और फिर वो YouTube पे कन्वर्ट होगी वो. और फिर वो YouTube पे नहीं कन्वर्ट होगी, जो आप YouTube पे देख रहे हैं वो व्लॉग्स हैं जो उन्होंने बनाए हैं मेरे लॉकडाउन. मैं थ्रू आउट लॉकडाउन वहीं रही हूँ. अच्छा, ओके. और वो टीम भी मेरे साथ वहीं रही है. जबरदस्त. दैट इज अ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ हाउ आई एम मेकिंग तारीफ का शुक्रिया. तारीफ का शुक्रिया स्टिल नॉट आउट. हाँ. तारीफ के शुक्रिया की 1 दिन की शूट बाकी है अभी, 18 दिन शूट हो चुके हैं. ओके. तो तारीफ का शुक्रिया डेवलप कैसे हुआ, उस मोनोलॉग से उसने ये फॉर्म कैसे ली, जो कि मैं आपको बता रही हूँ अभी, कि वो पता नहीं क्या है. ना मैं उसको फिल्म कह सकती हूँ, ना मैं उसे स्टेज प्ले कह सकती हूँ, ना मैं उसे सिने प्ले कह सकती हूँ. वो कुछ और ही है. तो बस उनका भी बंद हो गया जगह, क्योंकि वो लाइव इवेंट्स की जगह थी. उन्होंने कहा अब हम भी क्या करेंगे, यहाँ पे भी दरवाजे तो खोल नहीं सकते. तो हम सब वहीं क्वारंटीन हो गए. और हमने वहां पर मिलजुल के ये एक ऐसी चीज बना ली. जबरदस्त. तो उसमें को पैसे नहीं लगे एज सच. हाँ. अच्छा, पहली वाली जो है वो 4 करोड़ का वेंचर है, और ये कोई पैसों का वेंचर नहीं है. इसमें टीम भी वॉलंटरली रुक गई, मैं भी रुक गई, कुछ थोड़ा बहुत आर्ट किया, ऐसी चीज़ें की. अभी ऑब्वियसली फाइनल शूट करते हुए इक्विपमेंट मंगवाया, तो वो उन पैसों के मुकाबले में कोई पैसे नहीं है, लेकिन शायद वो करके आना ज़रूरी था. तो एक तरह से अगर मैं आज सोचूं ना, तो सेंटिमेंटल मेरा फिल्म स्कूल थी, क्योंकि मैंने तो बिजनेस पढ़ा हुआ है कि मैं ये कर सकूं विद नथिंग. तो फिल्म स्कूल में तो इंसान काफ़ी ज़्यादा गलतियां करता है. हाँ. तो वो क्या रीशूट होंगी गलतियां, आप बाद में नोटिस कर रही हैं पोस्ट प्रोडक्शन में? सेंटिमेंटल में अल्लाह का शुक्र है, मैंने वो जो उतरा है, जो स्क्रीन पे उतरा है, जो मैं अभी तक शूट कर चुकी हूँ 1.5 घंटा, उसमें कोई गलती नहीं है. नहीं, महसूस नहीं हो रही. मैं ज़रा केयरफुल भी हूँ, ज़रा सीख के करती हूँ चीज़ें. मेरी जो प्रोड्यूसर है, एमन सैयद नाम है उसका, वो शी इज़ एन एजुकेशनिस्ट, शी टीचेस फिल्म, एंड आई हैव लर्नड फिल्म फ्रॉम हर. I have learned direction from her. I've literally taken one-on-one workshops from her. She doctors my scripts. So I am chalak like that. And this was after the Chudels experience? 2018 I did the film. 2019 I did Chudels. 2020 is Tareef Ka Shukriya. Oh, so you did the film before Chudels? Yeah. I was just astonished कि एक तो मैं आपसे ये भी पूछना चाह रहा हूँ कि जब मैंने जुगनू का कैरेक्टर स्क्रीन पे देखा, तो एक तरफ तो मुझे महसूस हुआ कि यार पहली दफ़ा ज़िंदगी में कोई ऑनेस्ट पोर्ट्रेयल किसी किरदार की मैं देख रहा हूँ, क्योंकि ऐसी ख़वातीन मैं मिलता रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में. और दूसरी तरफ मुझे एक वो रिस्पेक्ट भी महसूस हुआ कि इतनी बोल्ड तरीके से उसको पोर्ट्रे करना विदाउट एनी
what seems to be the self-awareness, I want to say consciousness is the word I was looking for, that usually appears in actors, and then as soon as you yell cut, वो mirrors निकल आते हैं, अपने बाल से ही कर रहे होते हैं ये वो, और फिर end में you present something that's completely not real. So how did you end up landing on that? How did Asim approach you? Did you find the character? What was your process in finding the character? And what we saw on screen, what was the whole process for you? There was no process. That's you? That's as close to you as possible, that character? I'll tell you what happened. So I come back from shooting Sentimental December 2018. And I come back, और मेरा एक तरीका कार है कि मेरे घर का दरवाज़ा, मुझे 10 साल हो गए कराची में रहते हुए, ऑलमोस्ट वही 9-10 साल, और इस्लामाबाद में मेरे घर का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता था. Like my house's door is always open. Anyone can just walk. Even in Karachi? Yeah, even in Karachi. Wow. So I came, and first of all I closed the door. Because मैं को 48-49 किलोज की गई थी, मैं उस शूट से भी कुछ 44 किलो की होके वापस आई. बिकॉज 100 बंदा खड़ा हुआ होता है, एलेक्सा, पैराफर्नेलिया उसके साथ जो आता है, उसका प्रेशर, और उसमें को 18 कैरेक्टर्स की ensemble कास्ट है उस फिल्म में. And you're talking about likes of Irfan Khusad, Peo Zafar, Nimra Butcha, Laila Wasti, Saifi Hassan. You're talking veteran actors, ठीक है, जिनका अपना ही एक weight होता है. Just if they're on your set and your first time feature director, going still with no money in hand. जो पैसे थे ना मेरे पास, उसके साथ जो मैं काम करने गई थी वो फिर भी कम पैसे थे. और वापसी पे ये था कि घर का किराया भी नहीं था मेरे पास. And I was possibly going to get evicted. तो I had spent the last possible penny and I was still back with vendor debt. तो 4 महीने तो मैंने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया, और मैं पड़ गई बिस्तर पे ना. मैंने एक पोस्ट भी लगाई थी इंस्टाग्राम पे कि आफ्टर 116 days आई एम फाइनली नॉट टायर्ड. यस, इतनी मेरी कमर तोड़ी उस एक्सपीरियंस ने. और अभी मैं उठ ही रही थी उसमें से. अब मैं सोच रही थी कि अच्छा चलो बेटा यासरा, पैसे कमाने शुरू करो. जनरेटर वाले के पैसे रहते हैं, फलाने के पैसे रहते हैं, जो पहले भी स्पेल किया है ना, इसके भी पैसे रहते हैं. फर्स्ट लुक हाथ में आ गई थी, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स मांग रहे थे स्टार. वो कह रहे थे स्टार नहीं है आपकी फिल्म में. मैं कहा चलो ये तो एक लंबी प्रोसेस है कि जब तक ये मुझे फाइनेंस करेंगे, बाकियों के पिछले पैसे तो देने शुरू करूँ. अभी उसी मैं जोन में चल रही थी, और मुझे एक फ़ोन आता है कि जी आसिम अब्बासी साहब एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और उसके लिए एक कैमियो है, आप कर दें. मैंने कहा भेजिए मुझे स्क्रिप्ट. तो वो मुझे स्क्रिप्ट जब आया ना, तो ये एक 40 साल बैटर्ड औरत का कैरेक्टर, जिसका मियाँ उसे मारता है और चुड़ैलें उसे बचाने आती हैं. तो मैं आई एम नॉट इवन गोना लाई हियर, मैंने कॉल करके मैंने कहा यार आगे मेरी फिल्म फंसी हुई है. 40 साल बैटर्ड औरत, अव्वल तो मैं नहीं कर सकती, मेरी प्रोड्यूसर मुझे मार देगी. दूसरा ये कि मुझे बैटर्ड, आई डोंट वांट टू प्ले अ बैटर्ड वुमन. आई हैव प्लेड अ बैटर्ड वुमन मैनी अ टाइम्स, एंड देयर इज जस्ट नो फकिंग वे दैट आई एम इन अ हेड स्पेस टू डू दैट राइट नाउ. ठीक है. तो उन्होंने कहा अच्छा. मैंने कहा लेकिन ये जो आपके डायरेक्टर हैं ना, ये एक सच्चे आदमी हैं. मैंने इनकी फिल्म केक देखी है, क्योंकि मेरे मिजाज की नहीं थी, मेरे लिए वो ड्राई थी. अच्छा, ठीक है, मैं ज़रा मसाला पसंद है थोड़ा सा, तो उस तरह मेरे लिए वो थोड़ी ज़रा खुश्क थी. लेकिन मैं थ्रू आउट उस थिएटर में बैठी सोच रही थी कि ये कौन है जिसने जो भी बनाया अपनी मर्जी से बनाया, और ये साला ही इज गेटिंग अवे विद इट. इट्स ऑन थिएटर, इट्स ऑन सिनेमा, ही मेक्स केक एंड इट्स ऑन सिनेमा एज वेल, एंड इट मेड इट्स मनी बैक टू. मैं कहा अच्छा. तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा इनसे मेरी मुलाकात सिर्फ लेकिन आप एक करा दें, मैं इनको आगे ना मुबारकबाद देना चाहती हूँ. उनका अब ये एक अजीब सी बात है, आपको कोई कैरेक्टर के लिए कर रहा है कॉल, आप आगे से ये कहानी खोल दें. उन्होंने फिर मुझे कहा जी आप आ जाएं कल सुबह, लेकिन आप ये भी एक कैरेक्टर है, इसको भी ज़रा पढ़ के आ जाएं. तो वो जुगनू का कैरेक्टर था, उसके कोई 1-2 सीन थे. मैंने वो सरसरी तौर पे पढ़े, मेरा बस फिर इंटरेस्ट ही नहीं था. मैंने नहीं किसी और डायरेक्टर के पास जाके इस वक्त काम करना था, मेरा नहीं था मूड. मेरा अपना काम इतना खुला हुआ था मसला. मैं अगले दिन सुबह चली गई, मैं उनसे मिली, मैंने बहुत सारी बातें की, मैंने उनको बताया कि कितना गंद बन रहा है और क्या मसले हैं और मेरे इस वक्त क्या इश्यूज़ हैं बिकॉज ऑफ सेंटिमेंटल, एंड टोल्ड हिम व्हाट एन ऑनेस्ट आर्टिस्ट आई थिंक ही इज़. एंड देन ही वाज लाइक कि ये जो आपको ये 2 और आई हुई हैं सीन, मैंने कहा यार काम मुझे नहीं करना. इसलिए आप पढ़ के ना इसको ज़रा पढ़ लें एक दफ़ा, और ऑडिशन करते हैं सिर्फ. ये फ़ोन से हम रिकॉर्ड करेंगे, दुबई जाना है इसने, उनके ऑफिस, सेट ऑफिस. ठीक है. अब मैं आई हुई थी, मैंने कहा चलो कर ही दो.
लेकिन मैंने कहा मुझे कौन सा मिल जाना है, ये कैरेक्टर क्यों देंगे ये मुझे। अच्छा मुझे नहीं उस वक्त पता था कि ये कोई इसमें बीच में कोर चुड़ैल है। मैंने कहा ये भी कोई होगी, प्लानर आ रही है और चली जाएगी ये बकवास करके। मैंने कहा कुछ के ऑडिशन उनको दे दिया। किसी और का कैरेक्टर था बुनियादी तौर पे, बाय द वे सब कास्टेड थे कि आखिरी अब तलाश जुगनू की चल रही थी, क्योंकि जिनका कैरेक्टर था उनकी और कोई कमिटमेंट्स थी, जो हमारे काम में अक्सर हो जाता है, वो आगे जाती जा रही थी और अब प्रोजेक्ट ने फ्लोर पे जाना था। ओह खोरे पता नहीं क्यों क्या हो रहा है बार-बार, सॉरी आई एम सो सॉरी आई एम इंटरप्टिंग, क्या हो रहा है, गर्म हो गया मेरी बातें इतनी मतलब हॉट है। ये क्या तूने 4K में तो नहीं शूट लगाया हुआ इसको, पक्का 1080p है। I always knew when to leave the party. हाँ, I think that's the quality of conversation is going down. Yeah. Now you're realizing time to leave the party. yeah. So I always just knew how to went there were अब मैं सब सोचती हूँ तो अभी तक कुछ भी, खैर इतना कुछ तो मैंने अभी तक नहीं किया। Okay, so back to हाँ, तो क्या हुआ कि वो ऑडिशन शुरू हुआ, ऑडिशन चला गया। अब ऑडिशन भी जब चला गया तो मुझसे डेट शेट्स की बातें कर रहे, तो मैंने भी उसमें भी बोल दिया, मैंने कहा यार मेरी बीच में फिल्म आ गई, मैं तो लग रहा था मेरे तो आ जाएंगे पैसे और मैं फिल्म शूट कर लूँगी, तो मेरी तो कंटिन्यूटी एक बालों की और बड़े चक्कर हैं। मैंने कहा अभी छोड़ दो, मेरा अप्रूवल तो हो। अप्रूवल हुआ नहीं है, तुम लोगों मुझसे बातें शुरू कर दी है, पर वो 2-3 दिन में ही हो गया, बिकॉज आई वॉज द लास्ट पर्सन टू बी कास्टेड। एंड जब वो हो गया तो अजीब सा ही सीन था। फिर जैसे मैं पहले वेब सीरीज़ की बात हुई तो मैंने आसिम को जाती सबसे पहले कहा था कि इसमें मिनी स्कर्टें और हॉट पैंट्स और क्लीवेज और मेकआउट तो नहीं होगा, क्योंकि वो नहीं कर सकती मैं। तो उसने मुझे देख कर हंसा भी थोड़ा, कहता है नहीं ये सब नहीं है इजी। मैंने कहा नहीं वो वेब सीरीज़ों में होता है ना ये सारा कुछ, तो मैं नहीं कर सकती ऑन स्क्रीन ये सारा कुछ। तो कहता नहीं करना पड़ेगा। तो जब वो आ गया तो फिर मैंने उनको कहा, मैंने कहा मेरे पास तो ऐसे कपड़े नहीं है जो इस कैरेक्टर को चाहिए, मेरे तो नहीं है मेरे पास ये हीले हैं और हाँ बट मैं करीब अंदर से ना फिर भी उन्होंने कहा ये भी हम कर लेंगे। आप अपने आप को लेकर आ जाए, खुदा का वास्ता है, और कुछ हमें भी करने दें। हाँ। फिर मैं गई, वो उन्होंने लुक शुक बनाई, तस्वीरें भेजी, तो वो अप्रूव हो गया। मुझे जिस चीज़ ने किक किया उसमें सबसे ज़्यादा wasn't anything else was when I read the script. मैंने पहली किस्ती पढ़ी, मैंने कहा what intelligent well crafted writing, this guy knows his shit. मतलब जैसे शोज में देखती हूँ ये फार्गो मार्गो जो मुझे पसंद है, मैंने कहा हाय मैं सोचती थी कि हम पाकिस्तान में ऐसा कभी लिख सकेंगे, ऐसा कैसे लिखते हैं, मुझे नहीं आता वैसा लिखना, जो सच्ची सी बात है। वो दिल तो आदमी का होता है ना कि वो एक्टिंग करे किसी ऐसी चीज़ में जो ऐसी लिखी गई है, तो वो मैं तो वहाँ सेल हो गई ना। मैंने कहा यार इतना अच्छा लिखा हुआ है तो ये देखने वालों को भी पसंद आएगा, मैं देख भी सकूंगी, मुझे खुशी होगी, तो उसमें मेरा हो जाए। तो वो हो गया, फिर वो लुक भी बन गई, वो सब भी हो गया। और फिर मुझे बहुत सारे बॉडी इमेज इश्यूज रहते हैं हमेशा ना, तो मैंने कहा ये इतनी जो उसकी इंट्रोडक्शन ही लिखी हुई थी ना कि 32-year-old ग्लैडिएटर, मैंने कहा हाय मैं ऐसी स्मोकिंग हॉट ग्लैडिएटर कहाँ से लगूंगी, ये कैसे होगा with a doobie in her hand. हाँ तो मैंने कहा स्मोकिंग हॉट ग्लैडिएटर तो फिर आपको ही बनाना पड़ेगा मुझे, ये भी मैंने मुझसे कहा लाइक हम बना लेंगे। But you didn't lose weight or change your body physically anything for this? नहीं, बट लाइक जैसे अभी मेरे बायज हैं, मैं स्लीवलेस पहनने से परेशान होती थी चुड़ैल से पहले बहुत के। अच्छा। आई हैव लाइक मैं टोनिंग शोनिंग थोड़ी जिमो शिमो का थोड़ी मैंने चक्कर लगाया, वो थोड़ा कहाँ हो सकता है मुझसे, तो बट वो हो गया सब कुछ ना। उसके साथ स्मोकिंग हॉट होने के लिए सिर्फ पतले नहीं हो सकते आप और स्मोकिंग हॉट हो जाए, इस तरह तो बहुत लोग फिर रहे हैं, वो स्मोकिंग हॉट थोड़ी है। स्मोकिंग हॉट के साथ और भी होता है ना, देयर द इयररिंग्स एंड देन देयर द ड्रेसेस एंड द शूज, वो सब। फिर Samya and Arij, the people who were involved with production did a great design. job. I love Arij, man. I just love him. Amazing. He's such a brilliant production designer. Again, very new age, very forward, very progressive. Yeah. That's what I liked about him. And that's the team that he's been working with Asim since Cake as well. Yes, Arij did Cake as well. Yes. It's and Arij and Asim are like childhood friends, no? Oh, I didn't know that. Yeah, they were in school together. There's an age difference though. No, they're roughly the same age. They're the same age. Yeah, oh wow. Asim just looks very umar-chor and very kam umar, right? But the series of like it's a 10 episode thing and there's certain things that get set up in the first episode and then cash in the 6th episode and you're like abhi main misogyny ki dekh raha hu ki kis tarah breakdown kar rahe hain patriarchy ki and how it works, and I'm like but not all men are like this, so come on don't do that. But then they showed some men like that as well that weren't, they were like कि हम औरत की, was that line के
मर्द हैं मर्द थे इसीलिए इसलिए औरत के रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाहते थे. क्या बात थी वहाँ पे Yeah. मुझे गूज़बम्प्स आए थे उस पार्ट Yes, पे yes, yes. and so many things just like in the way that he tied things together and I was there 4-act structure, it wasn't even a 3-act structure. They would have a teaser in the beginning, just show the end of an episode. Reminded me of how Breaking Bad divides its episodes and just the overall character arcs. Fabulous writing, man. Fabulous writing. And he did it in the time that certain movies are like I Love You Babylicious and I know these other films that वो पता नहीं उससे बहुत देर पहले से बन रही हैं उतनी देर में he wrote it, shot it, Yes. edited it, produced it, put it out and of better higher quality. Yes. I do not understand how this man functions. तो मैं बता रही हूँ ना कि because that's all he does then. Oh, इसकी कोई और personal life is zero. मतलब उस बंदे का बच्चा बेगम बाहर इंग्लैंड में वो यहाँ पर बैठा हुआ है वो बेचारे आई भी मिलने जब हमारी शूट चल रही थी लेकिन वो सारा दिन शूट पे ही होता था तो रात को जब जाता था तो उसका बच्चा सो रहा होता था उनको उसी के सोते हुए बच्चे को प्यार करना उसी को सुला के फिर वो अपने काम पे निकल आता था. वो बंदा सेट पे भी कोई अपने फ़ोनों में कोई मैसेजों कॉलों पे नहीं होता था. ही वॉज ओनली फोकस्ड एट हिज वर्क. एंड जब वो स्क्रिप्ट इस नौयत का मेरे सामने आया जब मैंने और किस्से भी पढ़ी तो आई टेल यू हाउ इफ आई एम एट ऑल गुड एज जुगनू चौधरी इट्स बिकॉज देन आई ऑल्सो वर्कड सो हार्ड ऑन दैट कैरेक्टर दैट आई डोंट थिंक आई हैव एवर वर्कड दैट हार्ड ऑन अ कैरेक्टर बिफोर. Because if you actually pick up my scripts, they're full of notes. I then pushed it forward कि अच्छा ये मुझे टेक्स्ट ने दे दिया है अब मुझे इसको आगे कैसे ले जाना है. I made my emotional continuities. I wrote a lot. I'm a method actor. I was constantly in Jugnu zone, off camera, on camera. You know, like Asim never understood it कि इतना क्या बंदा पागल ही हो जाए ना. But yeah. That's just who I was. To be there. Yeah, I had to be complete. So then that is how it became very effortless. तो उसको कैरेक्टर को पाने का कोई प्रोसेस नहीं था हासिल करने का कोई प्रोसेस नहीं था. हासिल तो इट हैपेंड बाय द वे लिटरली बट उसको निभाने का प्रोसेस मेरी तरफ से फिर मैंने भी बहुत जान मारी उसके अंदर. मैंने बहुत मेहनत की. आई वेंट टू स्कूल लिटरली लाइक आई लिटरली टुक दैट कैरेक्टर एज आई वॉज एन एक्टिंग स्टूडेंट एंड आई एम बिगिनिंग टू लर्न एक्टिंग. So there were times when I would be so like riled up because I'd prepped the scene a certain way and I had thought about it because मैं तो अपना कैरेक्टर लेके चल रही थी तो मैं आसिम से ऐसी लड़ाइयाँ भी कर लेती थी कि आप डायरेक्टर हैं आप बहुत सारे कैरेक्टर देख रहे हैं आपको जुगनू इज़ नॉट योर प्राइमरी फोकस शी इज़ माई प्राइमरी फोकस ओके सो हाउ आई नो जुगनू यू कैन नेवर नो हर. अभी आप राइटर जिसने कंसीव किया तो वो भी ना कभी कभी मैं सोचती हूँ कि वो सोचता होगा ये क्या कौन है ये क्या समझती है हमने आपको. लेकिन But all great, I mean, Vince Gilligan says this about Bryan Cranston in Breaking Bad, that Bryan Cranston, after the first season, showed them where the character could go and how it could develop. Yeah. So you inhabited the person to the certain degree कि वो जब आपको बता रहे हैं अंदर से कि क्या होना चाहिए. हाँ और कभी ऐसे भी फड्डे हो जाते थे कि वही जो मैं सोच के गई हुई और फिर आसिम इज सटल आई एम लाउड तो वो फिर मैंने सटल कर दिया लड़ के आसिम से ना लड़ रही हूँ. और ये एक एक्ट्रेस है जो अब उसने अपने दीवार खड़ी कर लेती थी ना मैं तब जाती थी कि अब डायरेक्टर कैंट गेट थ्रू टू हर परफॉर्मेंस दे रही है वो एग्जैक्टली प्रिसाइसली जो उसको चाहिए. उसके बाद इज लाइक अब वो तीसरा कर दो एक टेक में वो वाली जो मैंने कहा मैं भूल गई हूँ. मैंने कहा मैं भूल गई हूँ आई वोंट डू इट. क्या for team and he used to like wonder कि ये again he probably hates me but मैं ऐसी भी हो जाती थी because फिर मैं जुगनू थी ना फिर मैं कहती थी ठीक है नहीं करूँगी जाओ जो मैंने सोचा हुआ ना वो अब नहीं मिलेगा you know ऐसी हो जाती थी. तो वो एक अजीब सा टाइम था मेरे लिए पर्सनली भी आई थिंक. बट आई थिंक it's you've been part of the TV industry. Did you think that वो जो क्योंकि यहाँ पे loud acting or maybe perhaps a different style of acting kind of is demanded from the person कि अगर रोने का सीन है तो रो पूरी तरह 100% रो. आई थिंक इट उसमें वो पुल बैक किया हुआ है पूरी परफॉर्मेंस से सारी एंड वो सब टेक्स्ट और सटलनेस के अंदर खेल रहे हैं. मेरा तो आई थिंक इतना बड़ा प्रॉब्लम टीवी की एक्टिंग नहीं था क्योंकि मैंने 8-9 साल में गिन के पूरे को 24 या 25 टीवी के प्रोजेक्ट किए हुए इंक्लूडिंग सिंगल प्लेज एंड टेलीफिल्म्स नॉट सीरियल्स ओनली. सिंगल प्ले और टेलीफिल्म में मिला के तो 7-8 तो इसमें टेलीफिल्में और सिंगल प्लेइंग है तो 9 साल में 16-17 प्रोजेक्ट इज नथिंग. अच्छा इट्स नॉट फॉर अ वर्किंग एक्टर. 9 is 2 3-4 तो साल के सीरियल फोड़ ही लेता है एक वर्किंग एक्टर. और इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें मैं लीड पे नहीं हूँ मैं सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी बड़े शौक से पिक कर लेती हूँ जहाँ मुझे मार्जिन नजर आ रहा होता है. तो
वो नहीं, मैं ज़ाती तौर पे बहुत एक्सप्रेसिव और लाउड हूँ ना, बस डुल के सब कुछ खुल फट के बताना है टाइप. सो वो मेरा ज़ाती मसला था. इट हैड नथिंग टू डू विद हाउ आई वाज ट्रेन्ड टू एक्ट. इट इज हु आई वाज, व्हिच वाज इन क्लैश विद द काइंड ऑफ आर्टिस्ट ही इज. तो फिर वो मैं उसमें फिर, और फिर मुझे ये बस ये, and I think within that clash you might have come up with the brilliance. हाँ, तो वो वहाँ पे कहीं कहीं ऐसी जगह है जहाँ पर वो लगा हुआ है जो मैंने चाहा था, जिसको मैंने पुश करके कहा कि मुझे यही करना है. तो which he used to agree to as well. ऐसा कोई डिसएग्रीमेंट वाला आदमी नहीं था. लेकिन वहाँ पर फिर वो कुछ एक ऐसी मैरिज बन गई जहाँ बैलेंस उस कैरेक्टर का निकल आया मजे का. Through conflict. Yeah, it's ultimately it's the only show that has been produced out of Pakistan that I could not stop watching. All the way straight. And I have Western sensibilities because I've grown up with those. मुझे ये कि आपकी टोपियां जो आप पहनती हैं इतनी ज़्यादा, तो इसमें आप जो अपना शऊर को तब्दील करना पड़ता है. अच्छा, टोपियां मतलब कि डायरेक्टर, हिदायतकार की, कभी स्क्रिप्ट राइटर की, कभी शायर होने की, और कभी मतलब कि आप यूट्यूबर भी. अब मैं एक तरह से कह सकता हूँ कि आप यूट्यूब व्लॉग, आपने लफ्ज इस्तेमाल किया वो यूट्यूब के लिए. तो वो सारी जो टोपियां हैं उसमें कोई शऊर, कोई गियर चेंज शिफ्ट करना पड़ता है, या इट्स जस्ट व्हाट्स कमिंग एंड you're just capturing as it's coming? यार बड़ी अजीब सी बात है, मेरे अंदर वाकई बहुत से इंसान बसते हैं, किरदारों का मजमुआ हूँ मैं बहुत. ये एक्चुअली तारीफ का शुक्रिया की लाइन है कि मैं एक इंसान नहीं हूँ. आई एम अ ग्रुप ऑफ पीपल इन वन बॉडी. ये एक फैक्ट है मेरे बारे में. इस लाइन का अगला हिस्सा बताना भी ज़रूरी है क्योंकि वो एक एक्सप्लेनेशन है अच्छी के. सो आई एम अ ग्रुप ऑफ पीपल इन वन बॉडी. एम आई सेइंग दैट I have multiple personality disorder. Not clinically proven. Nothing I can use to get away with murder, but I know that it's there. So similarly, and yet I'm a very distinct one person too, I think. Similarly, I love multitasking, but at one time I focus on one thing. तो मुझे टोपियाँ और गियर जो चेंज हो रहे होते हैं वो ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट मेरी पर्सनैलिटी खुद करी होती है कि उसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं. मुझे कॉन्शियसली करना ही नहीं पड़ता. ये मेरे अंदर की कुछ सेटिंग्स हैं. जैसे वो कुछ लोग को ब्लेस्ड होते हैं, वो नीली आंखों के साथ पैदा हो जाते हैं. कुछ लोग कुछ और, गाना बहुत सुरीली आवाज़. तो मैं शायद इस तरह ब्लेस्ड हूँ. ये कुछ ऐसे ये 3-4 चीज़ें हैं मुझे दे दी. ये आपके अंदर थी, लेकिन आपको लगता है कि आपकी परवरिश में उन किसी ने उसको दबाया नहीं, डिमिनिश करने की कोशिश नहीं की? क्योंकि लोगों को सीधा भी तो किया जाता है ना. समाज आपको इतना प्रेशर देती है कि आप एक खातून हैं, आप खाली डॉल से खेला करें. आप एक मर्द हैं तो आप खाली गाड़ियों के बारे में सोचा करें. तो उस तरह की चीजें, जेंडर रोल्स एंड ऑल ऑफ दीस थिंग्स, दे काइंड ऑफ सेट यू इनटू बॉक्स. आई वाज अ वेरी साइकोटिक चाइल्ड. मैं अपने घर वालों को सीधा करती रहती थी. बेचारे वो भी फंसे हुए थे. वो भी उन्होंने शुक्र पड़ा होगा. वो भी इसी तरह के, या आप उनमें भी? यार मेरे माँ बाप दोनों जर्नलिस्ट हैं. मेरे माँ बाप भी तो दोनों इस किस्म के लोग हैं ना कि उन्होंने इस्लामाबाद का पहला प्रेस क्लब उन दोनों मियाँ बीवी ने बनाया था. CDA से लड़के उनसे जगह लेकर. फिर अब माय फादर हैज स्पेंड अ लॉट टाइम इन जर्नलिज्म, पॉलिटिक्स, और क्रिकेट उनका एक और पैशन है. तो इस्लामाबाद के सारे जो क्रिकेट ग्राउंड्स हैं जहाँ पर लड़के खेलते हैं अंडर 19 के, उसकी सारी प्रोफेशनल पिचेस मेरे अब्बू और उनके दोस्त ने लड़के CDA से बनवाई. तो DNA भी है मेरा थोड़ा ऐसा कॉज ओरिएंटेड. मेरे लिए एक्चुअली शायद मुरू बात वहाँ आके ठहरती है कि मेरे लिए ये सिर्फ एक काम नहीं है, ये मेरे लिए कॉज है. मैं फिल्म मेकिंग को, कहानी सुनाने को, स्टेज परफॉर्मेंस को एक कॉज के तौर पे देखती हूँ. जैसे मैंने अभी हम ये ऑफ कैमरा जो डिस्कशन कर रहे थे कि मैं एक टीचिंग हॉस्पिटल हूँ, यहाँ सर्जरी भी हो रही होती है और बच्चे सीख भी रहे होते हैं. जैसे तारीफ का शुक्रिया की जो मेरी पूरी टीम है वो उस तरह फिल्म की टीम नहीं है, बट दे हैव प्रोग्रेस्ड विद मी. उनको सिखाया मैंने फिर कि शॉर्ट डिज़ाइन क्या होती है, आर्ट की क्या इम्पोर्टेंस है, ये शॉर्ट, इसके बाद ये स्केल हम क्यों नहीं जंप कर सकते, ये सीक्वेंसिंग कैसे डिवाइडेड है, ये क्यों ऐसे ज़रूरी है. अच्छा ये एंगल हमने छाप लिया है अभी इस पूरे सीक्वेंस में, तो अब हम एंगल शिफ्ट क्यों करेंगे, ह्यूमन आई को, व्यूअर को क्या जारिंग हो जाता है. सो आई वाज ट्रेनिंग ओवर द 6 months, ट्रेनिंग देम टू. सो आई तो अब मैं सोचती हूँ तो हाँ बहुत सारा DNA इन्वॉल्व है, बिकॉज बोथ माई पेरेंट्स आर कॉज ओरिएंटेड पीपल. देयर लाइव्स आर ड्रिवन बाय वन कॉज और द अदर. सो आई वुड से कि वो वाला एलिमेंट जो है वो उन्होंने, इसलिए शायद उन्होंने वो कुछ तो जरासीम पता चली गए होंगे कि ये तो अभी तो हमें नफ्सियाती मरीज लग रही है लेकिन ये
कुछ कर लेगी क्रेजी, कुछ शायद थोड़ा सा नफ्सियाती मरीज होना पड़ता है ऐसे सोचने के लिए और दुनिया के साथ ऐसे चलने के लिए. तो या देयर सम DNA, सम नॉट क्रशिंग मी. I have not I've dealt with these gender based problems outside of my home. But then because I was older by then, I was able to you're strong enough and fond in your character. You crushed it. I crush and walk over it and walk. And then you also lived a खाना बदोश type जिंदगी. उसमें आपने जो डिफरेंट कल्चर्स एक्सपीरियंस किए, जो रिवायात मुख्तलिफ तहजीबों की आपके सामने आई, उससे भी आपने कुछ असिमिलेट किया, मतलब कि वेयर ऑल डिड यू लिव एंड हाउ डिड दैट अफेक्ट यू? अमेरिका मुझे पढ़ने का इत्तेफाक हुआ तो वहाँ रही मैं. इंग्लैंड मुझे पढ़ने का इत्तेफाक हुआ, वहाँ रही मैं. जापान मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ ज़रा बचपन में. हाँ, वहाँ मैं एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने गई थी 14 साल की उम्र में. फिर मुझे ये रशियन स्टेट्स जब आज़ाद हुई थी, उज़्बेकिस्तान वगैरह, तो वहाँ जाकर कुछ अर्सा रहने का मौका मिला. तो ये कुछ मैंने ज़रा थोड़ी सुपर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड में जाकर इत्तफाकन ऐसा इत्तेफाक हो गया, क्योंकि मुझे वेकेशन करने के पैसे नहीं बचते मेरे पास, वो मैं जाती नहीं हूँ उतना. तो ये कुछ मौके मुझे ज़रा अर्ली लाइफ में मिल गए. तो वो हमारी माँ बाप के पैसे भी बेसिकली ये इंटरनेशनल एक्सपोजर हासिल किया मैंने उस वक्त. तो जैसे आज भी जो मैं चीज़ आई थिंक अमेरिका के बारे में मिस करती हूँ वो ये है कि मैं अम्मी को आकर कहती थी, मैं कहती अम्मी जब मैं वहाँ उतरती हूँ ना, जब मैं एयरपोर्ट से, वहाँ की हवा में जब मैं सांस लेती हूँ तो एक आज़ादी है, एक फ्रीडम है जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती. जैसे कराची की हवा में एक ऐसी चीज़ है जो मैं जब मैं उतरती हूँ तो मुझे अपॉर्चुनिटी फील होती है. एक अजीब सी बात है. Whenever I land in Karachi, I feel hopeful and I feel opportunity. इस्लामाबाद गई होती हूँ, इस्लामाबाद से वापस उतरती हूँ, जैसे आई ब्रीथ कराची की एयर, मेरे लिए वो है. तो कुछ आपकी पर्सनल अटैचमेंट्स होती हैं, एसोसिएशंस होती हैं. तो मैंने शख्सी आज़ादी, इंसानी ज़िंदगी की कीमत, उसकी कुछ तौकीर, ये कुछ चीज़ें ऑब्वियसली एक्सपीरियंस की. मसाइल मैंने वहाँ भी बेतहाशा देखे. मैंने वहाँ भी सड़कों पे अल्कोहलिक्स को एक सिगरेट मांगते हुए देखा. मैंने वहाँ पर भी सुबह जिस स्ट्रीट से मैं गुजर के जाती थी अपनी ट्रेन स्टेशन की नौकरी पे, वहाँ पर सुबह चहमगोइयाँ करते लोगों को देखा तो पता चला कि बस स्टॉप पे रात को एक आदमी बैठा हुआ था और साथ गुजरता हुआ एक आदमी शराब के नशे में धुत था, क्या बियर बॉटल उसके सर पे फोड़ गया. तो हर तरह के रवैये मैंने हर जगह देखे हैं मुरो, ये नहीं है कि मैंने नहीं देखे. और बस ये कि सिस्टम्स को मैंने ज़्यादा मजबूत पाया, वहाँ कानून को ज़्यादा मजबूत पाया. अच्छे बुरे लोग मैंने वहाँ भी देखे, यहाँ भी देखे. जाहिल सोच मैंने वहाँ भी देखी, जाहिल सोच मैंने यहाँ भी देखी. बट निज़ाम की मजबूती, पॉलिसी की मजबूती, वो मैंने उन मुल्कों की जो विन है वो बुनियादी तौर पे वो है जिस पे अगर हम यहाँ पर भी आएँ तो मुझे लगता है कि जो बार बार हम मार खा रहे हैं बहुत सारी चीज़ों में, और हम बार बार कहते हैं जी हुकूमत क्या करे, तो हुकूमत निज़ाम और पॉलिसी पे काम कर सकती है जिसमें वो इनएफिशिएंट है अभी और इनफेक्टिव है. लेकिन ऐसी वो हुब्बुल वतनी की बात भी नहीं है. सच्ची बात है वो ये है कि पाकिस्तान is like even if it becomes a toxic relationship for me, I don't think I'll ever be able to leave it. Because there is a certain ज़बान, एक तो उर्दू ज़बान, यहाँ के लोग, अगेन टॉक्सिक रिलेशनशिप ही हो जाए तो शायद मुझसे ना छोड़ी जा सके. पाकिस्तान में मैं ढूंढ रही थी कि मेरा घर क्या होगा, किस जगह को मैं अपना घर कह सकूंगी, तो वो इस्लामाबाद को नहीं कह सकी मैं कभी भी. हालांकि मैंने जिंदगी का, आप ज़्यादा वक्त आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद, मैंने 17 साल की उम्र तक का वक्त वहाँ गुजारा, फिर 21-22 साल से लेकर. शायद इस्लामाबाद की इतनी लंबी तवील तारीख नहीं है, इसलिए आपको ऐसे लगता है कि नया शहर है, या बस वो नया. बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो उनको इन लव विद इट, वो कहते हैं बस वहाँ घर हो जाए हमारा. मुझे शायद इतना सुकून पसंद नहीं है. हाँ, गालिबन ये वजह है. मुझे कराची की बेसुकूनी पसंद है, मुझे केओस भी पसंद है यहाँ का. और उस केओस में जीने की ख्वाहिश रखने वाले लोग और उनका दौड़ना और रोज़ कुछ करने के लिए निकलना,
ये पसंद है मुझे। मैं जितनी कोई थिंकर हूँ उतनी मैं डूअर भी हूँ। आई गेट वेरी बोर्ड व्हेन थिंग्स आर नॉट बीइंग डन। आई लूज इंटरेस्ट। I think plenty. I am one of those people who keeps days hidden from the world in between my schedule for thinking and feeling. Today was that day, by the way. I'm sorry I interrupted your thinking process. Either that day could be 15th or it could be today. So I basically penciled you in on my thinking and feeling day because this for me is thinking and feeling. So I have these thinking and feeling days where I think and feel. That's all I do. फिक्र करती हैं आप बस? हाँ, उन दिनों में मैं और कुछ नहीं करती। और ये कौन सी कोई पर्टिकुलर थीम्स होती हैं या बस जिंदगी के बारे में कोई भी खुला मैदान है, कुछ भी सोचा जा सकता है? और लिखाई भी इसी के साथ साथ हो रही है? सारा दिन कुछ भी नहीं कर रही होती मैं, लिखती तो मैं चलते फिरते लिख लेती हूँ। अच्छा, आज सीन शूट करना है 10 मिनट पहले लिख लूंगी। थिंकिंग एंड फीलिंग टेक्स टाइम। प्रिंटिंग इज अ लेबर जॉब, तो प्रिंटिंग है। एक्चुअल राइटिंग इज प्रिंटिंग फॉर मी। आई एम माशाल्लाह ब्लेस्ड विद वेरी गुड मेमोरी, सो आई कैन राइट अ लॉट इन माई हेड एंड रिमेंबर इट। ओके, तो ये जो गज़में हैं मेरी, अगेन क्योंकि सीधा तो करना नहीं है, कॉम्बिनेशन ही करना है, तो वो नज़म और गज़ल का कॉम्बिनेशन जो कहती हूँ मैं, तो वो भी मैं ऐसे ही दिमाग में लिखती हूँ सारी। जब उनकी कोई शक्ल बनने लगने पड़ती है तो फिर कुछ जो भी कागज़ पेंसिल कहीं भी नज़र आया या फिर टेलीफोन के नोट्स में मैं उसको लिख लेती हूँ। तो थिंकिंग एंड फीलिंग डेज आर इम्पॉर्टेंट फॉर मी। तो उनके लिए मेरे लिए बेस्ट जगह है, मैं अपने घर से बाहर नहीं निकलती दिनों, मैं अपने घर में ही होती हूँ। और अगर मेरे पास कोई काम धंधा ना चल रहा हो तो मैं 1 महीना भी पूरा अपने घर में रह सकती हूँ, मैं उससे बाहर नहीं निकलती। तो थिंकिंग फीलिंग चल रही होती है। लेकिन जब डूइंग का टाइम आता है, देन आई वांट एक्शन एंड आई विल वर्क 17 hours a day, 18 hours a day, tirelessly the whole। एक तो एक ऐसा सीन था सेंटी और मेंटल में कि सीन हो रहा है लाउंज में, फैमिली मेंबर्स का हक महर की डिस्कशन चल रही है, तो 12-13 एक्टर बैठे हुए हैं और मैं उसमें सिर्फ डायरेक्टर थी, उस सीन में मैं एज एन एक्टर नहीं थी। तो अब वो करते 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 शूट अपने को 14-15वें घंटे में चढ़ गई थी क्योंकि कुछ जनरेटर के प्रॉब्लम्स और कुछ। और मैं वहाँ से चलती चलती मॉनिटर के पास गई तो सब सो रहे थे, मेरे सारे एडीज सो रहे थे, मेरी प्रोड्यूसर की भी कराटे निकल गए थे, और जो जाग रहे थे वो मैं, कैमरामैन, डीपी जिसे कहते हैं, और गैफर। हम 3 लोग सिर्फ जाग रहे थे, एक्टरों के साथ वो सीन शूट कर रहे थे कि, और वो फिर सो आई थिंक दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट कराची। दैट्स अमेजिंग। आई मीन जनरली आज तो ये दोनों बैठे हुए सुन रहे हैं, लेकिन जनरली कुछ हमारी जब पॉडकास्ट में गुफ्तगू हो रही थी तो तभी खराटे ही चल रहे तो ये है, मुझे कराची के बारे में ये बात पसंद है। कहाँ से बात शुरू की थी हमने कराची, वो खैर है, वो अच्छी बात है, मुझे बहुत प्यार है कराची से, बाय द वे। हाँ, I want people to understand। मेरी एक लव हेट रिलेशनशिप है कराची। Have you always lived in Karachi? No, I'm a Lahori। You're a Lahori। लाहौरियों का तो सीन और है ना, फिर उनको नहीं समझ आता कुछ। मैं यहाँ पे किसी के सामने बोलता भी हूँ तो वो पकड़ लेते हैं कि यार तुम्हारा लाहौरी एक्सेंट है। और है नहीं, मुझे नहीं लगा कभी। शायद आप इस्लामाबाद की इसलिए, शायद नहीं। लेकिन कराची वाले जो भड़वा शड़वा कहते हैं, तो मैं नहीं कह रहा होता तो फिर कहते हैं लाहौर का सी लाहौर। अच्छा, लाहौर ने मुझे नहीं कभी कबूल किया, मुझे लगता है शहर आपको कबूल करते हैं, आप नहीं करते। बड़ा इंसुलर है ना, वो वहाँ पे खाली पंजाबी हैं और एक ही किस्म के लोग हैं। मैं पंजाबी हूँ भाई। अच्छा, हाँ, मैंने आपको पंजाबी बोलते देखा है कई दफा। इट्स नॉट लाइक मैं एडी कोई मैं अंग्रेज नहीं, मतलब आई एम अ पंजाबन, बट somehow Lahore didn't work for me। और शायद मैं, हाँ, you stayed there for no, short I've periods always gone there। मैं जाती हूँ 2-2 3-3 हफ्ते की शूटें भी होती हैं बीच में, या कुछ वो भी करने गई थी, वो वाला प्ले भी करने। पता नहीं वहाँ की हवा ने नहीं पकड़ा मुझे कभी। जी, जो मुझे कराची उतरते एक फील होती है ना, मैं अपने मियाँ को भी बताती हूँ, लोगों को बताती हूँ, वो कहते हैं कौन सी तुम्हें कराची की हवा में बू नहीं आ रही, तुम्हें तो नमी आती है और बू और वो मुझे एक, अच्छा अभी जो ह्यूमिडिटी है फॉर एग्जांपल यहाँ की, अब ये पसंद नहीं है लोगों को, राइट? बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं है ना। और ये जो ह्यूमिडिटी है ना, इसका एक अजीब, जब ये नॉर्मल चल रही होती है कराची में, यू प्रॉब्ली फाइंड दिस रियली वियर्ड, बट जब नॉर्मल ह्यूमिडिटी चल रही होती है ना कराची की, विच इज़ नॉट एक्सट्रीम लाइक ये जो कराची के 2 समर्स हैं, ये तो पता है ना, सितंबर अक्टूबर एक समर है और मई जून एक समर है, ठीक है? कराची इज 2 summers। इसके अलावा जो एक ह्यूमिड फील चल रही होती है ना, उसमें ना एक अजीब सी अगेन अनईजीनेस है, एक बेचैनी है फिजिकल सी, जो मुझे वो वाला जो एक है ना, एक वो कैफियत, वो भी मुझे बहुत चिप जो होती है, काम, वो आप यू विल लुक एट इट एज चिप बट वो जब अपने एक राइट बैलेंस में होती है ना मुरू, तो वो मुझे ड्राइव करती है।
It gets मुझे me तो चेफिंग हो जाती है लाइक यहाँ पे लाइक अगर ये नाजरीन ये है लाहौर के लोग जो कह रहे हैं बस खाना खवा दो सानू ते आराम करवा दो टेंशन कम नहीं करना कोई भी नहीं काम तो मैं बहुत करता हूँ एंड दैट्स वन ऑफ द थिंग्स दैट आई एग्री विद यू ऑन इज कि मेरे लिए मेरी कारोबारी ज़िंदगी का आगाज़ जो है वो ये शहर है, क्योंकि मैं जब लाहौर में था तो वो एक कॉन्टेक्स्ट ही ऐसा था कि लोगों के साथ जिनके साथ उठना बैठना भी था उनकी भी हैबिट्स एक रिलैक्स, वीव गॉट लैंड, ज़मींदार, मसला कोई नहीं, शेयर रखे हुए हैं, वो डिविडेंड्स आ रहे हैं, एवरीबडी सेट, नोबडी रियली नीड्स टू वर्क, सो एवरीबडी इज चिलिंग आउट। तो जब मैं इधर आया तो मुरो मैंने यहाँ पर एक चीज़ मुझे पढ़नी है और जिसका आप मुझे जवाब देंगे। आपको नहीं लगता कि जब आपकी ज़िंदगी में इतनी ईज हो तो आप पे जिम्मेदारी बढ़ जाती है? जिम्मेदारी किस बात की? टूवर्ड्स आप अपने इर्द गिर्द जब देखेंगे हाँ और लोगों के पास कुछ नहीं है, हाँ वो मुझे तो महसूस होती है, तो लेकिन इस कल्चर की बात कर रही हूँ मैं, तो ये उस वाला कल्चर में ये है नहीं, ऐसा नहीं है ना, नहीं है, ये मसला नहीं लगता तुम्हें? यही मसला था, इसीलिए वहाँ पे मैं बैठ के अपने आप को मुझे, क्योंकि मैं स्कूल से जब पढ़ के आया, मैं गया फुल सेल यूनिवर्सिटी ऑरलैंडो फ्लोरिडा, इट्स अ पॉलीटेक्निक टाइप फिल्म स्कूल, एंड ओवर देयर वी काइंड ऑफ सेट अप सेट्स, खुद ही पेंट करते थे, खुद ही शॉट सेट करनी, सो प्रैक्टिकल वर्क, यू नो, हाथों से काम करना। वहाँ से जब मैं वापस आया, वो 24 आवर स्कूल भी था, सुबह के 4 बजे भी क्लास है, तो वहाँ से जब मैं पढ़ के वापस आया और मैंने देखा कि हॉलीवुड में कितने लोग एक तो मेरे से टैलेंटेड ज़्यादा हैं और ऊपर से मेरे से काम भी ट्रिपल कर रहे हैं और फिर अचीव हो रहा है ये तो मैंने कहा कि मुझे तो फिर अपना काम कोई 10 टाइम ज़्यादा करना पड़ेगा। वापस आया लाहौर और ड्राइव मरती महसूस हुई। अब वो जब ड्राइव मर रही थी तो मैंने उस वक्त कहा कि यार ये मरने से पहले कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए और मैं भी यहाँ पे बैठा हुआ दोस्तों के साथ चरसे पी रहा हूँ उसकी जगह मुझे उठ के इधर कराची आ जाना चाहिए। और मैं कराची आया और उसके बाद से मेरे जितने भी दोस्त हैं वो सारे काम के ही दोस्त हैं, कोई सिनेमाटोग्राफर है, कोई म्यूजिशियन है, सारों से, और वो बातें भी हम यही करते हैं, वी लिव ईट ब्रीथ वर्क, दैट्स ऑल वी डू, सेम या। अब आई थिंक ये शायद को नाउ आई कांट लिव विदाउट इट। हाँ, तो अभी मुझे वहाँ लगता है कि ये जो सोच है ना, जैसे अभी ये कि मैं अगर अपने पैसे इस तरह गिनने पे आऊँ ना, जो मैं जनरली जो मुझे काम करने लोग पैसों के लिए बुलाते हैं और वो पैसे काम करके मैं आ जाऊँ, मैं तो साल की 2 वेकेशनें कर सकती हूँ, मुझे तो वाकई कुछ करना ना पड़े, जो मैंने अपने आप को इतनी आखिर डाली हुई है कि ये भी कर लो तो वो भी कर लो, तो मुझे जो उठाया है आपने मैं ना करूँ, और उसमें मेरे पैसे भी लगते हैं ना, जो मैंने कमाए होते हैं वो लगते हैं आगे, लेकिन जब वो मैं लगा रही होती हूँ तो उससे कुछ 2-4 ऐसे लोगों का रोजगार लग जाता है जो अदरवाइज नहीं किसी को समझ आ रहा है, और वो इससे जरा एलिवेट हो जाते हैं, उनकी स्किल सेट बढ़ जाती है, they can become better resources for the society and for themselves, but somebody has to invest in them पहली दफा। I become that person। तो मैं ये जो बात कर रही हूँ कि यही इस कल्चर से मुझे बड़ी प्रॉब्लम है। ये हमारे पंजाब में बहुत है ये कल्चर कि साढ़े कोल ते पैसे ही बड़ा, ज़मीनां ही बड़ियां, सानू की करन दी जरूरत, तोनू होर करन दी जरूरत है। हाँ, या तोनू ज्यादा करन दी जरूरत है। Does that give you meaning, the elevating other people from the current condition that they are in, or like मुझे कई दफ़ा हुआ कि जिस तरह मैंने शुरू में अगर कोई काम किया कुछ लोगों के साथ और मुझे लगा कि यार इसमें कोई टैलेंट है जो अभी कोई रिकग्नाइज नहीं कर रहा, तो आई थिंक इट्स अ डायरेक्टोरियल थिंग एज वेल कि यू रिकग्नाइज टैलेंट एंड देन यू प्लेस इट, एंड देन इफ द वीडियो गोज वायरल एंड he/she is now super popular, you want like I was right, there's something about you that says कि यार I was right and my instincts are correct and I was able to do something that now gives me meaning. And I'll tell you ना, मूरू चक्कर क्या है कि we talk about how we are so talented and how our country is full of talent. Our country is full of a lot of talent which is not polished yet. ये बिल्कुल uncut diamond की situation है, ये किसी के काम का नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, इसका हार बन के नहीं बिक सकता महंगा। वो सबको काम की जरूरत है, पोटेंशियल ही है बस। हाँ जी, तो पोटेंशियल को काम पे लगाना होता है। तो मुझे जो किक मिलती है ना, टू बी ऑनेस्ट, मोर देन कि मेरा अंदाज़ा तो जो दिल को सुकून होता ही है कि अच्छा यार मैं सही लाइन पे जा रहा हूँ। दूसरी मैं कहती हूँ कि अच्छा यार आपने एक्टिवली क्या करना है अपने मुल्क के लिए। तो आप इसी तरह एक बंदा को 3, 4, 5 ओवर देयर लाइफ टाइम अगर 100 लोगों को इस तरह एलिवेट कर पाता है, इस तरह उनको पॉलिश कर पाता है, जो खुद सीखा हुआ है वो उनको आगे सिखा के उनको थोड़ा पुश दे पाता है, तो फिर होता क्या है कि इस तरह 100 बंदा जोड़ के फिर पूरी सोसाइटी ऊपर जाती है ना, इंडस्ट्रीज बनती है, बातों से तो नहीं जाती। बिल्कुल।
तो वो फिर एक एक बंदे को जिम्मेदारी पकड़नी पड़ती है। जो उसको मौका लगे, जहाँ मौका लगे, 10 मिनट का मौका लगे, 4 दिन का मौका लगे, साल का मौका लगे, वो किसी और इंसान को, जहाँ उसे पता है कि आपके पास कुछ ज़्यादा स्किल सेट है या कुछ है जो इसके काम आ सकता है, तो वो ट्रांसफ़र करें और उसको आप अगर थोड़ा लाइमलाइट में ले आएँ तो आपका क्या जा रहा है यार? आपकी रोज़ी भी कहीं नहीं जाएगी, आपकी शोहरत, आपके नसीब में जो लिखा गया है, जो लिखी गई नसीब में, वो हर्ष है, वो हर खुशी तुम्हारी है, वो किसी और को नहीं चली जाएगी। वो it will remain yours. It's not going to be stolen off of you. But instead of talking only that फलाना वो कर देते, फिल्म स्कूल बन जाए यहाँ पे, तो आर्ट स्कूल बन जाए, तो टमकाने स्कूल बन जाए, तो कुछ हो जाएगा। तो आप खुद भी तो अपने आप में एक स्कूल हैं जिनने सीखा हुआ है। आप अपने आप को एक वर्किंग मोबाइल स्कूल समझ लें। तो ये आपको नज़र आया कि यहाँ पे लोगों के अंदर दूसरे को ऊपर उठाने की जगह दबाने की टेंडेंसी है, तो सारा प्रॉब्लम जी। तो ये इस प्रॉब्लम का क्या हल है, कोई सोचा आपने? यार, वी आर जस्ट entitled mofos who think that everything is our right, all happiness, all good stuff. मुझे एक डायरेक्टर साहब ने, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग, एक डायरेक्टर साहब ने एक फिल्म के अंदर रोल दे रहे थे, तब 5 लाख फॉलोअर्स थे यूट्यूब पे, तो कुछ थोड़ा सा मेरे में था कि मैं कुछ 5 लाख सब्सक्राइबर अब वो मिलियन हिट होने वाले हैं, लेकिन तब 5 लाख थे। हो जाते हैं लोगों के यूट्यूब पे सब्सक्राइब, हो जाते हैं। मैं तो छोटा हूँ अभी मगर तब थे, और मैं बड़ा थोड़ा सा तो इस्टेब्लिश्ड अपने आप को समझ के गया। तो उन्होंने मुझे बिठा के कहा कि तुम फ्री में ये रोल करोगे, मैं तुम्हें बना दूंगा। और वो उन्होंने जब कहा ना मैं तुम्हें बना दूंगा, तो मुझे वो ऐसे लगा कि यार इन्हें कोई विलन की मूवी नहीं अभी तक देखी कि वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन जब हो रही होती है तो वो इस तरह की क्या, मैं तुम्हें बना दूंगा और फिर उसके बाद तुम बन जाओगे। तो यार ये मेंटालिटी का क्या चक्कर है? ये सारी इधर से आती है ना, ये सारी यही मेंटालिटी है जिससे मुफ्त काम कराए जा सकते हैं, मुफ्त करा लो, जिससे जितना कुछ घसीटा नोचा जा सकता है वो कर लो। और कांस्टेंट लेवलिंग भी चल रही है, कंपैरिजन्स चल रहे हैं कि उसके इतने फॉलोअर हैं, मेरे इतने फॉलोअर हैं, अब मैं इधर बैठा हुआ हूँ तो वो इधर बैठा है, और वो इतने दिमाग में लेवल भी लोगों को इसी तरह ही किया जा रहा है। इट्स आई थिंक इट्स ऑल अगेन वही कि ज़्यादा पैसे खुद कमा लेना, किसी को कम देना, किसी को इस तरह की ऑफ़र कर देना, जो कुछ खुद आता है वो किसी और को ना सिखाना, ये सारी मुख्तलिफ हरकतें जो है ना, ये रूट करती हैं इसी चीज़ में कि हम कलेक्टिव थिंकिंग से बहुत दूर हैं। अगेन हम इस्लाम तो बहुत करते हैं बार बार, लेकिन वो एक कम्यूनल और कलेक्टिव रिलीजन है। हम तो कहीं से भी कम्यूनल और कलेक्टिव थिंकिंग के मालिक लोग नहीं हैं। हम तो कहते हैं ये एक मंजिल हम और ऊंची कर लें अपने घर की, हम 4 महंगे बैग और ख़रीद लें, हमारी तस्वीरों में अब एक और डेस्टिनेशन भी ऐड हो जाए, हम तो सिर्फ वही चाहते हैं। तो कलेक्टिव एंड कम्यूनल थिंकिंग का तो कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर। तो अपनी वही एंटाइटल्ड मोफोस thinking we deserve everything without doing anything and nobody else should get a piece of the pie just in case they overtake you in some yeah. way or the other. तो सीधी सी साइंस है ना अभी इस वक्त। हम 2 स्टार्स के साथ 12 करोड़ की फिल्म बना लेंगे, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर वो भी फ्लॉप हो रही हैं बाय द वे। 10 फिल्में रिलीज करते हैं साल की, 12 फ्लॉप करते हैं, ये इनकी बिजनेस सेंसिबिलिटी। लेकिन 4 नई टीमों में 3-3 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट करके टीमें नहीं खड़ी करेंगे। पता नहीं इनकी वल्ला। और वो रिगर्जिटेशन ऑफ द सेम स्टोरी ओवर एंड ओवर अगेन एंड डिवाइडिंग। मैं तो कई दफ़ा, अब ये मेरा टीवी के साथ है, आई डोंट नो इफ यू शेयर दिस, बट मेरा पर्टिकुलरली ये, इफ आई पुट ऑन अ चैनल, मैं देखूंगा कि एक एक्टर है, वो 4 फ़र्क ड्रामों में है, लेकिन उसका किरदार इतना सेम है कि मैं ड्रामों में ही कंफ्यूज हो गया कि मैं कौन सा वाला। अभी तो इसको डिवोर्स नहीं मिली थी। ये हकीकत है, ये हकीकत है। इस बात को कहने ना कहने में क्या शर्म, ये तो बच्चा बच्चा कह रहा है। ये तो कमेंट करने वाले बच्चे, ब्लॉग जो ड्रामों के ब्लॉग होते हैं उनके पीछे नीचे लिख रहे होते हैं। हाँ। तो 16-16 साल के बच्चों का ओपिनियन है ये। इसका नाम अभी इरफान नहीं था। हाँ, तो ये तो है। तो ये रिगर्जिटेशन ऑफ द स्टोरी इज बिकॉज, रिगर्जिटेशन का क्या मतलब? रिगर्जिटेशन मतलब कि वही चीज, घिसी पिटी कहानी को एक थोड़ा सा तब्दील, नाम चेंज करके इस बंदे को उसका हस्बैंड बना के फलाने का एक, लेकिन वो ही एक साइकिल। अच्छा मुर्ख, मैं तुम्हें बताती हूँ, टीवी का अलमिया भी है एक, ठीक है? इस तस्वीर के 2 रुख हैं। टीवी का जो सबसे बड़ा अलमिया है कहानी वाइज, वो ये है कि टीवी इस वक्त जो चैनल हैं, प्राइवेट चैनल, वो प्राइवेट चैनल्स हैं। सो द वर्ड प्राइवेट इज द ऑपरेटिव वर्ड हियर। दैट मीन्स प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस। ओके।
A privately owned business for profit. They are not NGOs and they are not state-run television. But that's also Netflix at the same time. Is a privately owned business for profit. But I'm coming to that. Okay, again, Pakistan की बात हो रही है अभी, ठीक है ना? Sorry, Netflix international global. Okay. अंग्रेजी सेंसिबिलिटी इज डिफरेंट. 100 साल पुरानी इंडस्ट्रियां ऑलरेडी ऑडियंस की सेंसिबिलिटी को कहीं और ले जा चुकी हैं. ओके. फर्क ठीक है. ये प्राइवेटली ओन्ड दुकानें पाकिस्तान ऑडियंस. ओके. पाकिस्तान में ऑडियंस कौन? मोस्टली हाउसवाइफ्स. क्योंकि क्लियर बाइफर्केशन है मार्केट में. मर्द न्यूज देखेंगे, औरतें ड्रामा देखेंगे. इट्स अ कल्चरल थिंग. दैट्स हाउ इट इज. मोस्ट ऑफ दोज विमेन middle class, lower middle class. Okay. Most of those women, stories and lives. सास बहू. Real life में भी ना. Yeah. घर जाना है वीकेंड पे तो मियाँ छोड़ने जाएगा, मियाँ लेकर आएगा. और उसका मूड होगा तो वो डिनर पे रुक जाएगा, जिसपे उसके घर वाले खुश हो जाएंगे बहुत. वरना वो नहीं रुकेगा. तो जवाई है, वो कुछ भी कर सकता है. ठीक है. शॉपिंग पे जाएंगी, मियाँ के साथ जाएंगी. जो कहते हैं हम पाकिस्तान में औरतें इतनी पागल क्यों हैं कपड़ों के बारे में, मेकअप के बारे में. दैट्स द ओनली प्लेस दे हैव फ्रीडम, यू फकर्स. वो कहती हैं हरामजादे के, फिर यहाँ तो पैसे लगवाओ ना. क्योंकि वहाँ नहीं कहता ना मियाँ कुछ, कहता ले लो. फैमिली की शादी है तो उसमें खाना नहीं पकाना रात को. बच्चे भी चले जाएंगे इधर, बेशक वैश्यों की तरह भागते रहेंगे, कोई नहीं पूछेगा. मैं जितनी तैयार हो जाऊंगी तो यहाँ से पता चलेगा कि मैंने क्या अकॉम्प्लिश किया अपनी जिंदगी में. ये असल औरत की जिंदगी इतनी लिमिटेड है. तो जब वो बैठती है टीवी देखने, तो मंटो का भी सीरियल चला था जानी टीवी पे, किसी ने नहीं देखा. सब्ज परी लाल कबूतर. सिनेमा में इट मेड इट्स मनी दो, राइट? हाँ, बट लाइक वो इतने पैसे नहीं थे ना. हाँ, ओके. बन बुन गए. उस वक्त फिल्में भी कम आ रही थी, लोग पाकिस्तानी सिनेमा सपोर्ट करने भी बहुत जा रहे थे. कुछ हो गया, मैनेज हो गया. बट टीवी पे वो ड्रामा सीरियल पूरा लगा, किसी को पता भी नहीं चला कि आया और चला गया. सब्ज परी लाल कबूतर टाइप ड्रामा कोई रेटिंग नहीं उठाता. काशिफ निसार, साजी गुल जब मिलके सन्नाटा बनाते हैं, कोई रेटिंग नहीं आती. तो वो जब जिन सब्जेक्ट्स की तुम बात कर रहे हो, जिन कहानियों की तुम बात कर रहे हो, उनको इन प्राइवेट दुकानों का प्राइमरी खरीदार जो है वो मुसलसल रिजेक्ट करता है. उसका इनके पास क्या है गेज करने का तरीका? टीआरपी. अब आप इनको ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि टीवी में, दुनिया में हर जगह यही तरीका है रेट करने का कंटेंट को. तो देयर साइंस इज मोर वेरी क्लियर एंड सिंपल. ओके, या. यू फॉलो व्हाट आई एम सेइंग? उन्हें तो एडवर्टाइजमेंट्स लगाने, उनको रेटिंग्स चाहिए. या. सिंपल. या. ये काम अगेन ऑडियंस को एलिवेट करना, ये चीज आ सकती है डिजिटल मेकर्स से. तुम यार उर्दू अंग्रेजी होती है, लोग एलियनेट हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल स्टेट रन टेलीविजन से. स्टेट रन टेलीविजन ये कर सकता है, उसको करना चाहिए. उसमें जो 4 काम होते थे उन्होंने वो भी करने बंद कर दिए. इतनी करप्शन है माशाल्लाह. बड़े बड़े स्टूडियो में बंद पड़े हुए, ताले लगे हुए हैं. स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियो है. पीटीवी का हुआ है ना तुम्हारा कभी इत्तेफाक जाने का? चक्कर लगा. वो बिल्डिंगें, वो इमारतें हैं किसी के पास. ओ ऊपर ग्रिडें लगी हुई हैं, लाइटें ऐसी हैं उनके पास कि वो तसव्वुर नहीं हो सकता. looking still like 1970s because they are not actually actively working on understanding that what a powerful tool that is, that needs to be utilized for the civic development, the social development, the psychological development of the viewer. लास्ट मैंने गैलप की जो रिपोर्ट पढ़ी थी, उसमें 53% पाकिस्तानी अभी भी टेरेस्ट्रियल चैनल देखता है. 53%. वाओ. या. वहां है वो काम करने वाला. तो वो कहीं से भी नहीं हो रही ना वो एम्पावरमेंट. आप औरत को निकाल ही नहीं रहे उस घन चक्कर से, तो वो क्यों देखेगी? वो कहती है अच्छा है तेने अब छड़ देता अपना मियाँ, ना पाई है नहीं देखती मैं ड्रामा. और मैं घर में लगाओ भी ना बेटियों पे. खुला नहीं लेना चाहिए था इसको. नहीं लेना चाहिए. अब मैं नहीं देखूंगी. हाँ, ये सच है मूरू. क्योंकि मैंने वो ये भी नहीं बता सकते. अभी मैं उष्णा शाह के साथ एक दफा गया एट डॉलमन मॉल, और वो उसको आके कह रहे थे, वो उष्णा शाह है, वो अपना किरदार नहीं है, कि आपको खुला नहीं लेना चाहिए जी. भाई एक्ट्रेस है, नाटक था. तो वो जो आपका ऑडियंस मेंबर आया ये बात करने, वो है आप इस प्राइवेट चैनल का खरीदार. इस शॉप में
आइटम्स का खरीदार वो है जिसको अभी ये फर्क ही नहीं करना आता कि ये एक्ट्रेस है वो करेक्टर था। हाँ। लोग इना दिल पजीर से मिलते हैं, उनको लगता है वो असल में मोमो है। बताओ ना अब तुम मुझे। तो यहाँ गैप्स हैं बहुत सारे, किधर से लाएं आप? नेटफ्लिक्स कैसे इनको समझाएंगे? तो फिर वो यही है, Z5 इज तो वो अब आप Z5 का भी कंटेंट अगर देखें तो उन्होंने फिर बहुत सारा पाकिस्तान से आर्काइवल ड्रामा भी उठाया है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान में देखने वाले लोग तो वो उनका ज्यादा मासेस तो वो देख रही है। उन्होंने इतना सारा क्यों, बहुत सारे कम से कम वो लाइब्रेरी डेवलप करते वक्त वो अपने TRP पे बेस करके एक ही कहानी को घिसी पिटी को रिपीट नहीं कर रहे कि इस पे TRP आया था, इसी को चेंज करके दे दो। और Same अभी thing, तो just इस different. वक्त का चक्कर ये कि पिछले 2-3 साल से तो ड्रामा इंडस्ट्री एक सीरियस क्राइसिस में है, फाइनेंशियल। अच्छा। या दे आर नॉट डूइंग वेल एंड फॉर रीजंस दैट आई डोंट थिंक दे आर टू बी सेड हियर, बट दे आर इन अ क्राइसिस. It's a financial crisis. A lot of investments have been pulled away because of the current government's policies. Oh, the policies. And everything works with money. तो अगर ऐसा कुछ करना भी है ना, ये फलाही काम करने के लिए एडिशनल पैसे चाहिए होते हैं. अगेन एक ऐसा मुल्क जहाँ पर लोग अपनी वार्डरोब में ऐड करना चाहते हैं, अपने घर को ज़्यादा बड़ा करना चाहते हैं, वो क्यों बॉदर्ड होंगे अवाम और लोगों की सेंसिबिलिटीज़ के बारे में? वो 8 में से एक प्रोजेक्ट क्यों बनाएंगे ऐसा जो उनको पता है कि उन्हें बिजनेस नहीं देगा? complex है, but so sorry. So sorry. It's too complex. There is no way to give a, जैसे मैं नहीं कर सकती, मुझे जब कहते हैं ना लोग कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, तो मैं टीवी की मजबूरियां समझती हूँ. अभी देखो ना वो जलन में वो जो साली का चक्कर है, उन्होंने जो अपनी तरफ से एक मसालेदार कहानी, उन्होंने कहा चलो एक इस एंगल को नया और एंगल देते हैं, वो ड्रामा शायद बैन हो गया. हाँ, पैमरा की तरफ से भी बड़ी सख्तियां हैं. आप बंदूक नहीं दिखा सकते, आप खून नहीं दिखा सकते, आप फलाना नहीं दिखा सकते, आप ढुमकाना नहीं दिखा सकते. तो टीवी पे और भी बड़े मसले हैं. टीवी पे हर बार पैमरा की तरफ से एक नई वो आ जाती है लिस्ट, ये नहीं दिखा सकते आप, ये नहीं हो सकता. अब ये आहिस्ता आहिस्ता ये अफेयर भी खत्म हो जाएंगे, सब भी खत्म, मसाला नहीं रहेगा टीवी करीब लोगों के पास, क्या बेचेंगे वो अपनी दुकान पे? मतलब कि डिजिटल इज द सॉल्यूशन आई सपोज. अब उसके अंदर अभी तक तो कोई पैमरा टाइप इदारा बनाया नहीं गया जो इसको कंट्रोल करे, मगर so while we have it, दूर नहीं लग रहा कि मुझे लग रहा है ये भी फिर आहिस्ता आहिस्ता रेगुलेट होना शुरू हो जाएगा. हाँ, रेगुलेट कर, जिनको पावर चाहिए वो तो हर चीज़ को रेगुलेट करेंगे ना. पावर तो चाहिए होती है सबको, और मीडिया और इंफॉर्मेशन को रेगुलेट करना इज अ पार्ट ऑफ कीपिंग पावर इन योर हैंड. Yeah. It will get to that point, so इसलिए हमें जल्दी बहुत सारा काम कर लेना चाहिए. Exactly. Release quick. बैठने का टाइम नहीं है ये. तो चलें अब. I mean, this is such a wonderful conversation. कुछ अपनी अगर शायरी हमें आप जाते जाते सुना दे तो. हाँ, क्यों नहीं. शुक्र करो मेरी जान कि खुदा इंसान नहीं है, और हाथ में इन लोगों के तराजुए ईमान नहीं है. अभी तो ये जिंदगी उसी की देन है, अभी तो ये इनका एहसान नहीं है. फर्ज करो अगर इंसान ही खुदा होता तो क्या होता? फर्ज करो अगर इंसान ही खुदा होता तो क्या होता? गम जिंदगी के शायद हमसे ना संभाले जाते, सांस लेते तो सजा होती, रोज हवालात में डाले जाते. लग्जिशें जो वो गिनता ही नहीं, उन पे दिन रात उछाले जाते. जन्नत तो क्या जमीन से हम सब ही निकाले जाते. कि इंसान तो इंसान है, भगवान नहीं है, रहीम नहीं है, रहमान नहीं है. तभी तो उसके बस में ये जहान नहीं है, ज़मीन नहीं है, आसमान नहीं है. शुक्रिया. I don't even want to put my voice after that. That's where we'll end it. That's it. Cut.